हेलो बच्चों। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासिफिकेशन, एंड इन द लास्ट वीडियो वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, बट द बेसिक थिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस concept that in classification we are not doing nothing but dividing or separating the organisms on the basis of similarities and differences into different groups. Main word is groups. But one thing which is very important to note that the classification of organisms is not a single step process, or it is not a cup of tea. Okay. Classification of organism is a very detailed process and a very large and cumbersome process which requires the study of characteristics on each and every step. So likewise we can say that in classification of organisms, the organisms are not classified only in one group, rather they are classified into more than one group, and these groups are known as taxonomic categories. Again I am saying the organisms in the classification are not categorized or not classified only into a single group, but a same organism is placed into so many groups from higher rank to lower rank, and these groups are known as taxonomic categories, और इनको एक और नाम दिया जाता है taxon, singular taxon and plural taxa. So taxonomic category or taxon, they are similar thing, same. So we can define taxonomic categories as the groups having specific rank in which organisms are placed during classification. Okay. So these are the this is the definition of taxonomic categories. Okay. So what are the different taxonomic categories? From a very so this is the definition of taxonomic categories. Now I am writing the names of different taxonomic categories. The first one is species. What is species? Species is nothing but a very small, or we can say that a smallest taxonomic category, or the smallest group of organisms which is taken into consideration during classification. So what is species? Group of organisms having similar morphological features. Okay, so the species can be defined as the group of organisms having similar morphological features. मतलब सबसे फंडामेंटल फीचर्स के सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम कह सकते हैं स्पीसीज. नाउ द टू इंडिविजुअल्स कैन बी डिफर्ड ऑन द species level on the basis of the difference in their morphological features. अगर उन organisms के morphological features, मान के चलिए कोई दो organism है A and B, अगर इन दोनों के morphological features match नहीं करते हैं, external features अगर इन organisms के match नहीं करते हैं, then we will say that these two organisms are not belonging to the common species. Okay, तो यहाँ पे बेटा हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज जो होगी उसमें हर ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिमिलर होगा. अब यहाँ पे एक और बात अगर हम कर लेते हैं तो इट इज
the basic unit of classification. अगर हम बोले स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बात क्यों बोलते हैं हम? ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम जान लेंगे। हालांकि मैं सबको डिफाइन नहीं करूंगा, डिफाइन करने की जरूरत सिर्फ स्पीसीज को थी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर एक्सटर्नल फीचर्स। अब एक और बात में अगर आप बता दूं तो जो स्पीसीज होती है ये स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, अब उसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? अगर आप हायर जाइए, अगर स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है तो स्पीसीज से बड़ी होगी फिर जीनस, फिर जीनस से बड़ा होगा क्या? फैमिली, फिर फैमिली से बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर फिर क्लास, फिर क्लास से ऊपर फाइलम, फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, और फिर उसके बाद द बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज किंगडम। हालांकि अभी हम कैसे बिगेस्ट है सब देखने वाले हैं। तो दीज आर द ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो मैं इनको अगर एक प्रॉपर तरीके से रिलेट करके दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से समझ में आएगा कि अगर स्पीसीज एक टाइप की स्पीसीज है, हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल देयर इज स्पीसीज ए, देयर इज स्पीसीज बी। ओके, दो टाइप की स्पीसीज है। अब स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप है तो स्पीसीज से बड़ा ग्रुप हो गया क्या? जीनस। तो हो सकता है एक ही जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज आती हैं। ऐसे ही एक जीनस में एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लासेस आती हैं और एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि किंगडम इज द बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है फाइलम एंड डिवीजन, दोनों में अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है। When we are studying the classification of animals, then we will use phylum, and when we are studying the classification of plants, then we will use the term division. हालांकि दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं है। Okay, now another important thing that we have to study is taxonomic hierarchy. But before studying taxonomic hierarchy, please note down the entire content which is written on the board. I hope you all have written the content. Now I am rubbing it. So हमने यहाँ पे देखा कि there are taxonomic categories and these taxonomic categories are from smallest to highest, okay, or largest. Now we are studying taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy. What is hierarchy? Hierarchy means arrangement of something in ascending or descending order. Okay, hierarchy means होता है ascending of something in arrangement of something in ascending or descending order. So now here we have written taxonomic hierarchy. Very clearly it is written taxonomic hierarchy. So in taxonomic hierarchy we can say that it is the arrangement of taxonomic categories from highest group to lowest group or lowest group to highest group. Okay, or in a very simple way we can say that
टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द sequential arrangement of or taxonomic categories. The sequential arrangement of taxonomic categories in ascending or descending order. So we can write the definition over here. The sequential arrangement of taxonomic categories in ascending or descending order. Okay. चलिए हम किसी भी एक तरीके से लिख के देख लेंगे, चाहे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, चाहे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. आई एम राइटिंग द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आती है वो है क्या? किंगडम. फिर किंगडम के नीचे आएगी क्या? फाइलम. फाइलम के नीचे क्लास. Then from class, order. From order, it will come family. From family, it will come genus, and from genus, it will come species. Okay. So this is the arrangement of taxonomic categories in ascending or descending order. But very important thing that you have to note over here that each taxonomic category, when arranged in ascending or descending order, they have the specific rank. Which means if class is placed below phylum and above order, then the rank of this class is always fixed. You cannot place class above phylum or below order. That will disturb the entire sequence of taxonomic hierarchy. Getting the point? So what I am trying to say that each taxonomic category, you can write each taxonomic category has specific rank. Now some important things that we are going to study. If we go from kingdom to species, if we go from kingdom to species, kingdom, it is the largest group. Okay. And species, it is the smallest group. ओके. किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप. कैसे? देखिए एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम, बहुत सारे फाइलम के अंदर, हर फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस, हर क्लास में बहुत सारे ऑर्डर, हर ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, हर फैमिली में बहुत सारे जीनस और हर जीनस में बहुत सारी स्पीसीज. तो सबसे छोटा ग्रुप जो निकल के आया वो स्पीसीज और सबसे बड़ा ग्रुप जो निकल के आया वो किंगडम. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, तो we can say that all the plants or we can say that all types of plant which are present on this earth comes under the kingdom planting or plant kingdom. So what we are doing or what we are saying, are we saying any specific thing or we are saying general thing? We are generally taking all types of plant on this earth in a particular group. This is kingdom. Now, तो किंगडम में अगर हम बात करें तो किंगडम लेवल पे अगर अपन बात करते हैं तो लीस्ट डिफरेंसेस होते हैं. किंगडम लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम डिफरेंसेस होते हैं. अब किंगडम में बहुत सारे प्लांट हैं, हर प्लांट
सारे प्लांट्स को हमने बहुत सारे फाइलम में डिवाइड कर दिया, हर फाइलम में फिर क्लासेस आ गई, क्लासेस में ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि किंगडम मतलब जनरल बात कर रहे हैं सारे प्लांट्स की, लेकिन वहीं पे आपने एक कोई स्पेसिफिक प्लांट उठा लिया। फॉर एग्जांपल आपने बात की किसकी, स्वीट पी की, आप स्वीट पी की बात कर रहे हो, पाइसम सटाइवम, सटाइवम इज द स्पीसीज, ओके, पाइसम इज द जीनस। तो सटाइवम ऐसी पाइसम कोई और स्पीसीज भी होगी, राइट? पाइसम सटाइवम जैसे एक स्पीसीज है, ऐसी पाइसम और भी कोई स्पीसीज होगी। ऐसे चलिए एक पाइसम को भूल जाइए, चलिए ऐसे मैं बात करता हूं, जैसे आपने एक प्लांट किंगडम लिया, किंगडम प्लांट, सारे प्लांट्स आ गए इसमें, उसी में से कोई एक प्लांट है वीट। वीट का साइंटिफिक नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। अब वीट का जो जीनस है, वीट की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे जो जीनस है वो क्या है, टिट्रिकम, ओके, टिट्रिकम। अब जीनस टिट्रिकम है, इसमें स्पीसीज कौन कौन सी, मान के चलिए दो स्पीसीज बता देता हूं मैं, एक है एस्टिवम, एक है टिट्रिकम एस्टिवम, एक है टिट्रिकम स्पेल्टोइड्स, ऐसे कोई और भी स्पीसीज होंगी। तो हर स्पीसीज अपने आप में एक स्पेसिफिक है, भले टिट्रिकम जीनस में, लेकिन एस्टिवम स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्ट क्या कहते हैं स्पेसिफिक मैनर में पूरे तरीके से अलग होंगी विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेल्टोइड्स, ओके। तो अगर हम मान के चलिए टिट्रिक जैसे कि स्पीसीज लेवल पे एस्टिवम और स्पेल्टोइड्स में सिमिलैरिटीज है, सॉरी डिफरेंसेस हैं, देयर आर कंप्लीट डिफरेंसेस ऑन द बेस ऑन द स्पीसीज लेवल, बट इफ वी मूव हायर, ये स्पीसीज लेवल है, अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं जीनस पे, तो कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी इन दोनों में, तभी तो इनको हमने टिट्रिकम जीनस में रखा है, राइट। अब अगर हम जीनस से और ऊपर जाएंगे तो ये सारे फिर कॉमन इसमें फैमिली में आ जाएंगे, ऐसे कॉमन ऑर्डर, कॉमन क्लास, कॉमन फाइलम, कॉमन किंगडम। तो ऊपर अगर हम स्पीसीज से ऊपर आते जा रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंसेस का जो लेवल है वो कम होते जा रहा है, और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंसेस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं स्पीसीज लेवल पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऐसे अगर मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम की है काफी सारी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, बट द प्लाज्मोडियम इज बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, यूग्लिना is also belonging to kingdom protista, amoeba is also belonging to kingdom protista, and paramecium is also belonging to kingdom protista, and plasmodium itself is also belonging to kingdom protista. So there is some similarities between amoeba, plasmodium, paramecium, euglena, that's why they are coming in kingdom protista, but plasmodium on the species level have so many species because they are having some specific differences. So on the species level the differences are maximum, and on the kingdom level the differences are very less, okay. So this is the taxonomic hierarchy, the arrangement of taxonomic categories from higher level to lower level, or from lower level to higher level, whatever is preferred to you. But one thing is to be kept in mind, that each taxonomic category has a specific rank, okay. Note it down very carefully.